Hallelujah. This is the time for testimony. Tonight, Brother King Ebenezer of the Bangalore Center will share his testimony for the glory of God. Praise the Lord. मेशी की नाम की स्तुति हो. I thank and praise God for giving me such an opportunity to once again stand and testify in the presence of God. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ ताकि परमेश्वर के हज़ूरी में और एक बार खड़े होकर उसके नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने ऐसे एक मौका मेरे लिए दिया. As the word of God says in Philippians chapter 2 and verse 13, for it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. The Lord has been merciful in creating his will in me and enabling me to do his will. फिलिप्पियों की पत्री का 2:13 वचन में जैसा लिखा है वैसे ही मेरे जीवन में परमेश्वर का वो इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया. So according to the eternal plan of God, God gave me to good spiritual parents, especially to a good prayerful spiritual mother. परमेश्वर की नित्य योजना के अनुसार प्रभु ने मुझे एक आत्मिक माता पिता दिया और एक आत्मिक रीति से मुझे बढ़ाने के लिए उनके ओर से मुझे सहायता दिया गया. Even as a young infant, God brought me into the fellowship of the saints and enabled me to grow up in the fellowship of the saints. बचपन से छोटे उम्र में ही इस संगति में बढ़ने के लिए और संतों के सहभागिता में रहकर पाए जाने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया. As I came to my years of understanding, of observing and knowing things, in a very young age I knew that my mother had consecrated me to the service of the Lord or to the ministry of the Lord. जब मैं समझ में पहुंचा तब मुझे यह जानकारी मिली कि मेरे माँ ने मुझे ऐसे एक प्रतिष्ठित सेवा के लिए मुझे अर्पण किया है. Even before I came to know it, once particular Sunday, there was a pastor in the local faith home where we were attending for services. He was taking about habitations, eternal habitations in heaven, and about judgment that day. ये बातों को मैं समझने के पहले ही हमारे कलीसिया का हमारा पास्टर जो थे उसके एक हफ्ता के पहले उन्होंने नित्य मिरास के बारे में, निवास स्थान के बारे में इतवार को उन्होंने संदेश दिया. So that day he told the righteous inherit heaven and those who do unjust and wicked works will go to fire, lake of fire or hell. उस समय उन्होंने ऐसे संदेश में कहा धर्मी लोग जो है वो स्वर्ग में जाएंगे और अधर्मी जो है वो नरक में पहुंचेगा. He told there are many places in heaven. उन्होंने ऐसे कहा स्वर्ग में कई स्थान है, निवास स्थान है. Later he followed saying there is a special place in heaven. उस समय उन्होंने ऐसे कहा स्वर्ग में एक विशेष स्थान भी पाया जाता है. And only those who are called of God and the elect of God can enter into that place. उन्होंने ऐसे कहा जो कोई प्रभु की ओर से बुलाए गए और चुने गए हैं वो उस नियुक्त स्थान में पहुंचेंगे. He told only 1,44,000 can enter into that special place in heaven. उस विशेष स्वर्ग में पाए जाने वाले उस स्वर्गीय निवास स्थान में 1,44,000 वे लोग ही पाए जाएंगे. So I now was excited with these words because he was mentioning about a special place in heaven, not the ordinary place in heaven which every righteous man is going to inherit. तब मैं ये सारे बातों को सुनकर उत्साह आया कि उन्होंने स्वर्ग में सारे धर्मी लोग प्राप्त करने वाले स्थान के बारे में नहीं बल्कि एक विशेष स्थान के बारे में वो प्रचार किए थे. He told the name of that place is Zion and only those who are called and chosen of God can enter into it. उन्होंने इसे कहा उस स्थान का नाम सियोन है और जो कोई बुलाए गए और चुने गए वे लोग जो है उस नियुक्त स्थान में जा पहुंचेंगे. Right from that very moment of hearing those words, I wanted to go to that particular place, that special place in heaven. उस समय जब इस वचनों को मैं सुना मेरे भीतर एक आग्रह उत्पन्न हुई उस विशेष स्थान में मैं जाकर पहुंचना है करके मैंने आग्रह किया. He spoke about the consecration to go to that place that they were not married and they should serve the Lord.
उस समय वहां के प्रतिष्ठा के बारे में उन्होंने अपने प्रचार में कहा, वे विवाह रहित जीवन बिताने वाले झुंड के लोग हैं करके उन्होंने बताया। And he read the verse from Revelation which says these were not defiled with women. और उन्होंने प्रकाशित वाक्य से उस वचन को पढ़ा कि वो अपने कामों से, स्त्री से वे अपने आप को अशुद्ध न करेंगे। So I was excited, and at the same point of time I feared how I could do such a life. ये सारे बातों को सुनने के समय मेरे अंदर एक उत्साह आया, लेकिन दूसरी तरफ मेरे भीतर एक डर आया कि मैं कैसे ये जीवन बिता सकता हूँ। So at a very young age I got this desire to serve the Lord and to go to that special place in heaven. उस बचपन के उम्र में ही मेरे भीतर ऐसे एक आग्रह आया कि मैं प्रभु का सेवा करना है और उस स्थान में जा पहुंचना है। With this desire in my heart, God enabled me to grow up in this fellowship, to finish Sunday school and to get anointed by God. और उसी आग्रह के साथ संडे स्कूल पढ़ने के लिए और बपतिस्मा लेने के लिए और इसी संगति में बढ़ने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। So the anointing which I received was when I attended a particular Sunday school assembly where they said now there is going to be an anointing which is to fall upon everybody of you. If there is somebody who is not going to get an anointing, pray God and receive this anointing. उस समय जब ये अभिषेक को प्राप्त करना था, एक से एक सभा में से कहा गया था कि अब सारे लोग अभिषेक पाने वाले हैं, यदि किसी को अभिषेक नहीं मिला है आप भी प्रार्थना कीजिए, आपके ऊपर भी एक अभिषेक उतरेगा। Everybody received anointing. I did not even get a symbol of receiving an anointing. उन दिन ऐसे हुआ, सारे लोग अभिषेक को प्राप्त किए, लेकिन मेरे ऊपर कोई अभिषेक नहीं उतरा। So I asked God, if I want to serve you, just give me anointing. Don't put me to shame in front of these people. तब मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मैं तो तुझे सेवा करना चाहता हूँ, ये सारे लोगों के सामने मुझे लज्जित नहीं करना, मुझे भी अभिषेक कर। Within a few minutes I got the utterances of unknown tongues. I received anointing, but I had the lack of the knowledge of the power of God. मैं थोड़े ही क्षण के बाद अन्य भाषा बोला और मैं एक अभिषेक को प्राप्त किया, लेकिन मैं परमेश्वर के सामर्थ के बारे में अनजान रहा, उसको मैं पहचान नहीं पाया। Praise be to God. यीशु की नाम की स्तुति हो। After certain years, God enabled me to obey to the truth of water baptism. थोड़े समय के बाद प्रभु पानी की बपतिस्मा की सच्चाई को अनुकरण करने के लिए सहायता किया। God helped me to receive water baptism from our saints and to abide by the truth of water baptism as far as I was able to keep it to the purity of my mind. प्रभु के अनुग्रह से नियुक्त समय में पानी की बपतिस्मा लेने के लिए सहायता किया। संतों के हाथ में लेकर मेरे मन के विचार के अनुसार एक पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन बिताने के लिए प्रभु मुझे सहायता किया। As I grew up in the world, this desire to serve the Lord was with me. At the same time, I can see another desire to fulfill the desires of mine own heart. जैसे मैं बढ़ता गया, एक तरफ से प्रभु का सेवा करने वाला आग्रह मेरे हृदय के भीतर था, लेकिन दूसरी तरफ से इस संसार में बढ़ते बढ़ते मैं अपना मर्जी को पूरा करने के लिए अपने खुद ही के अनुसार भी चलने का आग्रह मेरे भीतर उत्पन्न हुआ। I can very well realize that my own desire were against the thoughts and the will and the intentions of God. तब मैं इस बात को ढूंढ निकाला कि मेरा विचार और मेरा सोच, ये सारे कल्पना जो है परमेश्वर के मर्जी के विपरीत में पाया जा रहा है। As things were passing this way, every time that my mother came to know that I was erring from the way of God, she would used to warn me, saying, "See, I have consecrated you to the ministry of the Lord. Fear God, keep your consecration and live accordingly." जैसे इस अनुभव में बढ़ने के समय बारंबार मेरा अवस्था को देखकर मेरा भटकने वाले मार्ग को जानने वाला मेरा माँ समय समय पर वो मुझे चेतावनी देती थी, मैं तुझे इस सेवा के लिए प्रतिष्ठा किया हूं, इसीलिए तू अपने जीवन को संभाले रख। There were many instances to say that God loved me very much. One such instance and example I would like to cite the spiritual mother that God gave me. कई अनुभव है जो प्रभु मुझे कई बार चेतावनी दिया, उनमें से एक घटना मैं आपके सामने रखता हूं
जैसे मेरा माँ जो आत्मिक होकर पाई गई थी उससे मुझे मिली। She used to pray for me every morning, rising up early for the 4 o'clock praising, because every morning she will get dreams of what I'm going to do that day. हर दिन भोर के समय मेरी माँ मेरे लिए दुआ करती थी और हर दिन मैं जो कुछ करने वाला था उसके बारे में उसको पहले से ही प्रभु बता देता था। So I remember even now the days during my college where she would used to call me up in the evenings and she'll say, I saw this dream today. What have you done? Why has God shown me such a dream to me? जब मैं कॉलेज में रहने के समय अचानक मेरे माँ से मुझे मोबाइल फोन आता था और वो ऐसे कहती थी, तेरे बारे में प्रभु ने मुझे ऐसे कुछ बताया है, तूने क्या किया, क्या हुआ तेरे भीतर। I used to get very annoyed because God used to reveal everything about me to my mother. उस समय ये सारे बातों को जब मैं अपनी माँ से सुनता था तो मैं बहुत ही बेचैन हो जाता था कि क्यों प्रभु मेरे बारे में हर बातों को मेरे माँ को प्रकट करके दे रहा है। I cannot hide anything from God and from my mother. मैं कोई भी बात परमेश्वर से या मेरी माँ से छिपा नहीं पाया। Anything I hide, God will reveal it to her. यदि कुछ भी बातें मैं छिपाने के लिए प्रयास करने से भी परमेश्वर सारे बातों को प्रकट करके दे देते हैं। Certain times I used to yell at her. I'll say, why do you get these kind of dreams? Don't pray, just go and sleep. कई बार मैं मेरी माँ को देखकर चिल्लाता था, चीखता था, कहता कि तू क्यों ऐसे प्रार्थना कर रही, चुपचाप जाकर सो जा। I did not realize God loved me very much, so much that God kept an intercessor in my mother, that she kept pleading for me to preserve the calling that I had. मैं ये नहीं जानता था कि मुझे परमेश्वर इतना प्रेम किया कि मुझे मेरे लिए बिछवाई करने का एक अनुभव मेरे माँ के भीतर रखा और मुझे हर बातों में मेरा बुलाहट को और मेरे प्रतिष्ठा को संभालने के लिए उसकी ओर से मुझे चेतावनी मिलती गई। Later, as I grew, I wanted to serve the Lord, but it was not the entire desire of my heart. जैसे मैं बढ़ता गया मैं प्रभु को सेवा करने के लिए चाहता तो था, लेकिन वो मेरे हृदय का पूरा आग्रह होकर नहीं पाया गया। So one evening after the Bible study was over, she took me to the pastor there, and she told, Pastor, I've surrendered him to the ministry. What should I do about his education? She asked him. एक शाम के समय मेरी माँ मुझे अपने पास्टर के पास ले गई और ऐसे कहा, मैंने तो इसको सेवा के लिए पूरी रीति से अर्पण किया है, अभी इसके विषय में मुझे क्या करना है आप बताइए। He told, make him study BA English and send him to the ministry. तब उन्होंने कहा कैसे भी उसको BA इंग्लिश का पढ़ाई खत्म होने के बाद इसको सेवा में भेज दीजिए। I asked my mother, should I speak bad English like him, that I have to learn BA English? I have plans of my own, so pray for me. If it is the will of God, I'll go to ministry, or else please leave me of my own. तब मैं ऐसे उत्तर दिया, क्या मैं BA इंग्लिश इनके समान एक खराब इंग्लिश बोलने के लिए मैं पढ़ूं? यदि प्रभु का मर्जी है तो मैं परमेश्वर की सेवा के लिए निकल पड़ूं, या मुझे अपनी मर्जी के अनुसार छोड़ दीजिए करके मैंने ऐसे उत्तर दिया। But through every difficult path I went, through every paths of sin that I went, this desire to serve God, to go to Zion, God preserved it throughout with me. मैं कई मुश्किलों के बीच में जाने से भी, पाप में रहने से भी, हर एक परिस्थितियों के बीच में मेरे हृदय के गहराई में ऐसे एक आग्रह कि कैसे भी मैं प्रभु के लिए सियोन बनना, ऐसे एक आग्रह मेरे भीतर पाया गया था। As I earlier told you that verse in Philippians chapter 2 verse 13 about God creating a will in us and making us to do that will, I had a will to serve that particular pastor who preached to me about Zion. जैसे मैंने पहले कहा, फिलिपियों की पत्री का 2 अध्याय के 13 वचन में प्रभु हमारे भीतर आग्रह को उत्पन्न करता है और उस आग्रह को पूरा करने के लिए सहायता भी करता है। तब मेरे भीतर ऐसे एक आग्रह आया, जिस पास्टर के द्वारा मैंने ये प्रकाशन को सुना, उसी पास्टर के साथ उनको सेवा करना है करके एक आग्रह मेरे भीतर उत्पन्न हुई। All through my youthhood, the Lord was good to me. मेरे पूरे जवानी के समय मेरा परमेश्वर मेरे लिए बड़ा होकर रहा। He kept me in all his ways. He preserved me. He hid me. मेरे हर एक मार्गों में वो मुझे संभाला,
मेरा रखवाली किया और मुझे छिपाए रखा। At the right time, God spoke with me through right prophecies and through word of God. सही समय में सही भविष्यवाणी के द्वारा और सही वचन के द्वारा प्रभु मुझसे बातें किया। I could find a fear installed in me, saying, if I am going to lose this call, what so great can fulfill the empty space that is going to be created because of missing this call. मेरे भीतर ऐसे एक डर उत्पन्न हुआ कि यदि मैं इस बुलाहट को तुच्छ जानने से उसके बाद मेरे हृदय के भीतर आने वाले खालीपन को मैं किसको रखकर उसको मैं भर सकता हूं। But somehow the Lord made me to surrender to His call. कैसे भी उसकी बुलाहट के लिए संपूर्ण रीति से समर्पण करने के लिए मुझे प्रभु ने सहायता किया। But I was praying for an experience of salvation. कैसे भी मैं प्रभु से कैसे भी उद्धार के अनुभव को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहा था। It was at that point God spoke to me. He said, "Will my words not do good to the just?" उस समय प्रभु का वचन से प्रभु ने मुझसे बात किया कि क्या मेरे वचन धर्मी के लिए कोई भलाई नहीं करता। He spoke to me saying, "Don't walk in two ways. Don't serve two masters. Surrender to my call." तब उसने ऐसे कहा, दो स्वामी का सेवा नहीं करना, दो मार्ग में जाने का प्रयास नहीं करना, मेरी मर्जी के लिए अपने आप को समर्पण कर। At the right time, by the grace of God, I surrendered to this ministry wholeheartedly. नियुक्त समय में पूरे हृदय के साथ इस सेवा के लिए मैंने अपने आप को समर्पण किया। Right from that point till now, the Lord has been a good father to me. उस दिन से लेकर अब तक मेरा परमेश्वर मेरे लिए एक अच्छा पिता होकर, भला पिता होकर पाया गया है। I can feel that this is the greatest gift, the love of the Father. It's the greatest gift that I have received in my entire life. पिता का वो प्रेम मेरे जीवन भर में प्रभु ने मेरे ऊपर दिखाया हुआ सबसे बड़ा वरदान और तोहफा होकर मैं देखता हूं। I was living the life of my wildest dreams. मैं इस संसार के उस जंगली आग्रह के साथ मेरा जीवन पाया गया था। He led me according to my heart's desire. उसने मुझे अपने हृदय के अनुसार जानने के लिए छोड़ दिया था। He was very kind to me. मेरे लिए बहुत ही दया होकर रहा। He dealt with me so softly. उसने बहुत ही मृदु भाव से मुझसे बर्ताव किया। Even I can't believe God helped me to serve the pastor who preached to me about Zion. और मैं ये भी विश्वास नहीं कर पाता कि जो पास्टर ने मुझे सियोन के बारे में प्रचार किया, उसी पास्टर को सेवा करने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। Even now I feel I can't repay what He has done to me. आज भी इस समय में भी इस क्षण में ऐसे सोचता हूं कि प्रभु ने जो कुछ मेरे लिए किया उसका बदला मैं नहीं चुका सकता। I wanted to live a faithful, a pure and a righteous life as according to the heart of God. परमेश्वर के हृदय के अनुसार विश्वास योग्य, धर्मी, एक पवित्र जीवन बिताने के लिए मैं चाहता हूं। God, who had hitherto created to will and to do of His good pleasure, should continue to do so. जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में उस अच्छे आग्रह को उत्पन्न किया, उसको पूरा करने के लिए प्रभु मुझे सहायता करना चाहिए। Giving all glory and honor to God alone for doing all these good works in me, I thank and praise God. परमेश्वर जो मेरे जीवन में इस भला काम को आरंभ किया, उसके लिए सारे महिमा आदर केवल परमेश्वर को देखकर मैं उसको धन्यवाद करता हूँ। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा। For all the work that God has done in this dear brother's life, first of all, for giving him a godly upbringing through godly parents. जो सारे भलाइयों को परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में किया, सर्वप्रथम उसके पालन पोषण करने के लिए एक आत्मिक माता पिता उनको दिए। And also for helping him in his young age even to know there is a place called heaven and hell, and helped him to choose that he would be with Jesus in heaven. और छोटे ही उम्र में स्वर्ग नरक के बारे में जानने के लिए एक समझ दिया और यीशु के साथ स्वर्ग में वो वास कर सकता है, इसका एक पहचान भी उसको मिला। आणि लहानपणापासून जे आहे स्वर्ग नरकाबद्दल जाणून घेण्यासाठी आणि स्वर्गामध्ये परमेश्वर सोबत निवास करू शकतो याविषयीची ओळख परमेश्वराने त्यांना दिली। For helping him to repent of his sins at the right time and obey the truth of baptism,
for filling him at his young age with the Holy Spirit. ठीक समय में मन परिवर्तन करते हुए पानी का बपतिस्मा को लेकर के पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाने के लिए भी परमेश्वर ने सहायता किया. आणि योग्य वेळेमध्ये जे आहे आपले मन पश्चाताप करीत जे आहे बाप्तिस्मा घेण्यासाठी पवित्र आत्म्याचे सामर्थ प्राप्त करण्यासाठी परमेश्वराने मदत केले. For helping him to experience the love of God that drew his heart. For God gave him a mother to reveal the love of God to him and kept him from all sin in the world. और परमेश्वर का प्रेम जो उसके हृदय में ऐसा काम किया कि वो परमेश्वर की ओर खींचते रहा, और एक माँ को परमेश्वर ने दिया ताकि वो परमेश्वर के प्रेम के द्वारा उसकी जीवन की सारी बातों को बताए और उसे परमेश्वर के पास खींच रहा है. आणि परमेश्वराचे प्रेम या प्रकारे त्यांच्या जीवनामध्ये काम केलेले आहे की परमेश्वराचे प्रेम त्यांना आकर्षित करीत राहिले आणि आईच्या द्वारे देखील जे आहे ख्रिस्तामध्ये वाढविण्यासाठी परमेश्वराने त्यांना मदत केली. For helping him to surrender to God who worked in him to will and to do of his good pleasure at the right time, to surrender his life to come to serve God, that he may love God and serve God and be with him forevermore, eternally in Zion. God may continue to bless his servant and keep him faithful to the end and raise many young people from our midst to also come out and serve God. Shall we praise और God? परमेश्वर के इच्छा के सुमति के अनुसार परमेश्वर की मर्जी करते हुए उसकी सेवा करने के लिए परमेश्वर ने इस महान सेवकाई की बुलाहट में परमेश्वर ने लेकर के आया. परमेश्वर की सेवकाई में परमेश्वर की मर्जी में अंतिम समय तक परमेश्वर उसे संभाले चलाना चाहिए, और वैसे अनेक जवानों को भी परमेश्वर की इच्छा की सुमति के अनुसार परमेश्वर की मर्जी में लेकर आने के लिए मिलकर हम धन्यवाद करेंगे. देवाच्या इच्छेप्रमाणे त्यांना सेवेमध्ये घेऊन येऊन देवाच्या इच्छेप्रमाणे चालण्यासाठी जीवन जगण्यासाठी ज्या प्रकारे देव मदत केलेला आहे तसेच अनेक तरुणांना परमेश्वराच्या सेवेमध्ये गौरवयुक्त सेवेमध्ये घेऊन येऊन देवाच्या इच्छेप्रमाणे चालवण्यासाठी या आपण देवाचा धन्यवाद करूया. Praise the Lord, praise the Lord.